Hello students, today we will continue our yesterday's topic which was ion exchange process. So what we studied in previous lecture that in ion exchange process we use ion exchangers. There are two kind of exchangers, cation exchanger and anion exchanger. The structure of cation exchanger is this, in which a basic unit is styrene divinyl benzene and their sulfonation. This is your basic structure of cation exchanger. Another one is anion exchanger, and this is the basic structure of anion exchanger. So by using the cation exchanger and anion exchanger, we remove cation and anion of the hardness causing compound. So this is the diagram which is used for the ion exchange process. So in this diagram there are two containers. First one, this one is cation exchanger and this is the anion exchanger. Both are same size container. So what is the construction of this anion exchanger? First container, it is filled with cation exchanger, means cation exchanger bed is inserted in this, and then a layer of gravels is here. So same for the anion exchanger, a bed of anion exchanger resin and then gravel layer. It means these two are cation and anion exchanger respectively, where we use cation exchanger and anion exchanger. Okay. Both container are attached with the pipe, and here the pipe here attach a pump which lift the water level towards the upward direction. Okay. Other than this, there are two injectors. This is the first injector and this is the second injector. In first injector, it is filled with HCl solution, and second it is filled with NaOH solution. So here is acidic container and here is the basic container. So in first container, this is the hard water inlet. From the hard water inlet, water comes into this bed. Okay. So when water comes into the contact with this cation exchanger, reaction occurs, and the reaction occurs between cation exchanger, positively charged ion H plus ion, and हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड आयंस कैटायंस. ठीक है, मतलब कि हमारे पास में जो कैटायन एक्सचेंजर हमने लिया है, उस कैटायन एक्सचेंजर की रिएक्शन किससे होती है? उस कैटायन एक्सचेंजर की रिएक्शन होगी हार्डनेस कॉजिंग कंपाउंड के कैटायन से. ठीक है, अब यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी वो मैं रिएक्शन से बता सकती हूँ आपको. ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में Ca2+ है, उस Ca2+ की रिएक्शन किससे हुई? RH+. मैंने आपको बताया था कैटायन एक्सचेंजर रेजिन के टाइम पे कि ये जो H+ आयन है ये रिप्लेसेबल होगा. ठीक है ना, बेसिक यूनिट आपकी वही रहेगी. तो H+ आयन का रिप्लेसमेंट किसके साथ हुआ है? Ca2+ के साथ में. तो Ca2+ क्या है? ये. अब ये Ca2+ क्या हो सकता है? इट मे बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इट कैन बी कैल्शियम क्लोराइड, इट कैन बी कैल्शियम सल्फेट, कुछ भी हो सकता है. बट कैटायन क्या होगा इन सब में? Ca2+. रिएक्शन किसके साथ हुई? रिएक्शन हो रही है RH से. अब RH की रिएक्शन हुई तो इस R से रिप्लेसमेंट हुआ है Ca2+ का इससे. तो क्या बन गया? R2Ca+2H+ आयन. मतलब ये हुआ कि CaCl2 होता सपोज, ये इट मे बी Ca2+. तो Ca2+ के केस में
ये रिएक्शन इससे होती CaSO4 होता, तो CaSO4 की रिएक्शन होती तो क्या बनता, R2 और H2SO4। अब मान लो इसमें होता CaCl2 तो क्या बनता, RH, ये है ही रिएक्शन एक्सचेंज हुआ किसका, कैटायन का, मतलब H+ से इस कैटायन का एक्सचेंज हुआ R2Ca प्लस H2HCl। ठीक है, इसी तरीके से Mg+2 है, तो Mg+2 की रिएक्शन किससे हुई, RH+, वही सेम, लेकिन Mg कंपाउंड है। अब Mg कौन सा हो सकता है, वही सेम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कुछ भी। तो ये क्या बन जाएगा, R2Mg प्लस 2HCl, MgSO4 के केस में H2SO4, ठीक है ना, और बाइकार्बोनेट के केस में आपके साथ में H2C होती है। मतलब ये आगे जाके क्या बनेंगे, सब में फर्दर कैटायन एक्सचेंज हो जाएंगे और जो आपका RH+ था वो R2Ca बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं उस स्ट्रक्चर से आपको इम्प्लाई करके बताऊं तो कैटायन में क्या हो रहा है, ये जो COOH+ है यहाँ Ca आ जाएगा या फिर Mg आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर SO3H+ है तो यहाँ Ca+2 या Mg+2 आएगा। ठीक है ना, 2 आएंगे क्योंकि आपके वो 2+ के हैं तो 2 से अटैच हो जाएंगे वो। ठीक है ना, क्योंकि R2Ca है ये। ठीक है, तो एक बेसिक यूनिट से 2 अटैच हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन हुई, अब किसकी हुई है, हमारी फर्स्ट कंटेनर में हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें आपको समझ में आ गया कि जो भी आपकी थी RH वाली वो सब कैटायन एक्सचेंजर R2Ca R2Mg में कन्वर्ट हो गया। अब वाटर यहाँ से जो जा रहा है ये कैटायन फ्री वाटर गया। ठीक है ना, वाटर कंटेनिंग H+ एंड एनायन, मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो वाटर था इसमें से H+ का रिप्लेसमेंट हुआ, वो वाटर में चला गया है वो, और एनायन बचे हैं वो आपके पास में। ठीक है, तो अब इससे जो वाटर आया है उस वाटर को फर्दर हम नेक्स्ट कंटेनर में पंप के थ्रू, यहाँ पंप आएगा एक, उस पंप के थ्रू लिफ्ट करके इसको नेक्स्ट कंटेनर में सेंड कर देंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन तो समझ में आ गई आपको। अब ये नेक्स्ट कंटेनर की रिएक्शन होगी विच इज़ एनायन एक्सचेंजर रिएक्शन। अब जो हमारे पास में वाटर है उस वाटर का, अब ये एनायन एक्सचेंजर है वो कौन से थे, मैंने आपको बताया था ROH। ठीक है, तो वो ROH की रिएक्शन अब किसके साथ में होगी, H+ और एनायन कंटेनिंग वाटर में, मतलब HCA तो हट गया है बट जो एनायंस थे यहाँ पर उसका भी रिप्लेसमेंट होगा, तो उसमें वो रिएक्शन होगी। अब वो रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। कैटायन एक्सचेंजर की कंप्लीट हुई रिएक्शन एनायन एक्सचेंजर की नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू।